kinds of laws which are related. I don't think that there will be something wrong equal to both men's and women's, and it is pride for us to know that they are keeping all these things in mind and giving us equal rights through the men and women, and it is a proud for a woman or a girls of our constitution because reduce these things. And now I want to conclude my speech by keeping all these things in mind, that girls should given some rights and protection in our constitution, because girls is very important in our society, because they are the only one who can regenerate the population, and they can make them illiterate or literate. So if girls want, they can increase the economical rate or they can decrease the economical rate. So I think that it should be very pride for us to take these types of rights in our constitution, and we should thank the Lord and our constitution to giving such rights. That's all. Thank you. For a nice speech. Actually, as I told you earlier, that yesterday she was absent and she was totally unaware of this program. So you see her interest. So we must know the law. Without preparation, try to speak on any topic. This will show your true merit. Before this, I would like to express my heartiest thanks to our Iftikhar Bhai, who has come here as a press reporter here. And he is from, he has already his own YouTube channel. Its name is 81 Bharat. And he is doing very well. So I would like to inform you also. Please subscribe his channel, and you will know all whatever is happening in Aurangabad. You will get to know through his channel. So he is very hardworking, very honest press reporter. So once again, I would like to tell you the name of his channel, that is 81 Bharat. So you must subscribe it. And I would like to express thanks to him again. Now there are only two speakers here because it is going to be 5:30. So from girls' side, I would like to call Ms. Zina. Ms. Zina, please come here and add beauty to this program with your superb speech. Please give her a big hand. Yes, and our respected sir and my dear brother and sister, good morning to all of you. This is Zain Kareem, and today I will talk about the new law. ये है औरंगाबाद के मदरसा रोड में ऑक्सफोर्ड कोचिंग सेंटर इंग्लिश स्पोकन कोर्स यहाँ पे कराया जाता है, जहाँ पे बच्चों को इंग्लिश की पढ़ाई होती है और इंग्लिश बोलने के लिए यहाँ पे सिखाया जाता है। नूर आलम सिद्दीकी और गुलफाम सिद्दीकी यहाँ पे टीचर हैं और बच्चों को यहाँ पे सिखाया जाता है। इसी तरह से बच्चों ने 3 नए कानून के बारे में पढ़ा और उसे इंग्लिश में स्पीच दिया। और औरंगाबाद सिविल कोर्ट के एडिशनल पीपी रसिक बिहारी सिंह यहाँ पे आए हुए हैं बच्चों को बताने के लिए, ख़ास करके कि क्या है 3 नए कानून जो पास हुए हैं अपने देश में, उसके बारे में लोगों को जागरूक करना है और लोगों की नॉलेज में उनकी जानकारी देनी है। लोगों की नॉलेज में ये बात होनी चाहिए और उन्हें जानकारी होनी चाहिए। बच्चों को बताया जा रहा है, स्कूलों में जाकर के, कोचिंग सेंटरों में जाकर के, हर जगहों पे जाकर बताया जा रहा है। और यहाँ पे बताने के लिए रसिक बिहारी सिंह जो कि एक समाज सेवी व्यक्ति हैं और एडिशनल पीपी औरंगाबाद सिविल कोर्ट में हैं और ये जाकर यहाँ पे बच्चों को मोटिवेशन दे रहे हैं। इन्होंने खुद बताया है कानून के बारे में, 3 नए कानून जो मॉब लिंचिंग के ऊपर बिल पास हुआ है कानून का, और लड़कियों के बारे में, औरतों की पूरी सेफ्टी के लिए चैन वगैरह जो छिनतई का काम होता था उसके बारे में पूरी सख्ती कर दी गई है। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि कोई भी FIR होता है तो हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक भी अगर कोई जाता है तो 3 साल के अंदर में रिजल्ट आ जाना चाहिए। देखिए पूरी तरह से क्या है 3 नए कानून के बारे में जानिए, सुनिए। And the innocent people, so we know about it. So, and I think it's like government are giving more power to the bureaucrats, and it's not good because if we give more power to bureaucrats, it will create a chance to separation, killing, and murder by the police. So it's a bad side also. And government should talk about this type of thing. Government
should take action against those people who are ready to take our country money and enjoying their life in abroad. So if government are doing this, and if government is that, and the main thing is that our system and our police and bureaucrats believe in that sentence, justice hurried is justice buried. So that's why, and in that statement, they are neglecting their performance and they are coding their mistakes. But we, the people of India, always believe justice delayed is justice denied, because we never get justice on time. That's why I believe, and because there are a lot of faults in our system. We believe is justice hurried and justice buried because we never get justice in time. And at last, I wanted to say that if you talk about the new laws, so already we have very different type of laws for different types of crimes. So if you are adding a new law, so this will not affect any type of thing. It will always create a bit confusion to people in a people mind. So first we should act about those laws which we have already. But right now, government are only confusing the people. They want to divert the people mind. That's why they are creating this type of law. So thank you. Nice speech. Actually, she told one quotation which is related to law, and that is justice hurried is justice buried. And there is one more quotation that justice delayed is justice denied. So we have to keep both the quotation in mind. We should never be in a hurry while delivering justice, because if we are in a hurry, justice may be wrong also. So this is the basic concept of criminal justice. We have to presume even the criminal as an innocent person, so that one innocent person may not be convicted. So these are the basic law which we have to follow. Now I would like to call our student, now who is a very well-known lawyer and he is doing well. I think you may have guessed he is Mr. Ramji. I would like to call Advocate Ramji. Please come here and express your views on the new laws. Please give. मैं चाहूँगा कि सभी लोग तो इंग्लिश में बोले, मैं चाहूँगा कुछ हिंदी में बोलना। देखिए, जितने 3 लॉज भारत में लागू हुए 1 जुलाई 2024 को, इसमें फर्स्ट है BNS, भारतीय न्याय संहिता। एक है BNSS, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। एक BSA, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। सबसे पहला चीज सर बात कर रहे थे कि फ्रेमिंग ऑफ चार्ज फ्रेमिंग की बात कर रहे थे। तो सबसे पहले इसमें दिया गया था CRPC में अंडर सेक्शन 228 फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, लेकिन अब जो सेक्शन दिए गए हैं BNSS में 263। अब जो है पहले कंडीशन ऐसा नहीं था कि आपको कब कितना दिन में फ्रेमिंग करना है चार्ज को, लेकिन अब जो है मात्र 60 डेज यानी 60 दिनों के अंदर आपको कर लेना है। एक चल रहे थे हम लोग स्पीडी ट्रायल, तो स्पीडी ट्रायल अभी ये कहा कि जस्टिस हम लोग को 3 साल के अंदर मिल जाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट तक फाइनल। ये तो पहले भी प्रोविजन है, पहले से स्पीडी ट्रायल इसीलिए रखा गया कि जल्दी से आपकी केस को निपटारा किया जा सके। एक हम लोग और बात कर रहे थे जुवेनाइल के जो फैसिलिटी देने के लिए कि जो पेटी केसेज हैं जिसमें 500 रुपये तक जो फाइन है, उस केसेज में जुवेनाइल को पहले केवल फैसिलिटी था कि उनको यदि कन्विक्शन दिया जाता था तो उस स्थिति में उनको जाके स्कूल में या किसी में जाके पटवन करने के लिए या स्कूल में सफाई का काम करने के लिए, पढ़ाने के लिए बच्चों को इस तरीक़े से दिए जाते। तो आज भी वही फैसिलिटीज है, तो कहाँ चेंज हुआ? चेंज नहीं हुआ। और प्लस में जो हमारी सरकारें हैं आज, जिन्होंने कहती है कि वाहवाही लूट रही है कि हमने तो 3 अच्छे मतलब अंग्रेजों का कानून बनाए हुए थे, उसको हमने अलग कर दिया, स्वतंत्र भारत को अच्छे कानून दे रहे हैं। लेकिन आपने बिना डिस्कशन का, जब आपकी संख्या वहाँ पास विपक्ष की संख्या नहीं थी, आपने 140 MP को बाहर निकाल दिया, मात्र 5 घंटा आपने बहस किया और इसके बाद में आपने कानून को पास कर दिया। तो ये कहाँ से जस्टिस, कैसे दे सकते हैं जस्टिस? जस्टिस चिल्ला रहे हैं कि जस्टिस मिलना चाहिए,
तो उस टाइम कहाँ गया था? जस्टिस नहीं था। जहाँ तक समझ है कि जब सारे संसद मेंबर उपलब्ध वहाँ पास रहे, प्रेजेंट रहे, उस टाइम इसको लाया जाता, वहाँ पास आर्गूमेंट चलती, इसके बाद में चलने के बाद में इसको लाया जाता है। दूसरा चीज़ कि सरकार कानून बनाई, एक निग्लिजेंसी का जो ड्राइवर लोगों का, उसमें फिर इन्होंने रिपील किया, वापस ले लिया। तो आपको कहीं ना कहीं इसमें अभी बहुत ज़्यादा कमियां हैं। और ये दिखाते हैं कि न्यू क्या है, सभी डिफिनेशन सेम है, थोड़ा बहुत एक दो जो जोड़ा गया है या एक दो को डिलीट किया गया है, लेकिन बाकी तो सेम चीज़ वही है, केवल नाम चेंज किया गया है। तो मैं इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। उन्होंने आज इस सेशन में, ऐसे तो क्लासेस डेली चलता है, ये कुछ डिफरेंट रहा। इंग्लिश ग्रामर और स्पोकन से आप डेली रूबरू होते हैं, आज कुछ लॉ के बारे में जानकारी मिली। और आपको ये भी बता दें कि जो भी VIPs हैं इंडिया में, या जो मोस्ट हाईली फेमस जो पॉलिटिशियंस हैं, दे आर ऑल्सो लॉयर। सो लॉ की जानकारी बिल्कुल होनी चाहिए। नाउ आई थिंक यू ऑल आर वेटिंग to hear our chief guest. I would like to call him, and before calling him, I would like to say once again that we should take a lesson from him. Welcome him. Please put your hands together for him. Sir. संस्थान के नूर आलम सिद्दीकी साहब, डायरेक्टर साहब, और आज इस सेमिनार में शिरकत कर रहे न्यूज़ चैनल 81 भारत के इफ्तिखार साहब, हमारे करीब एडवोकेट करीब एडवोकेट जो है सर रामजी, और पार्टिसिपेंट्स मिस सौम्या, मिस्टर लक्की, मिस्टर मोबशीर, मिस्टर रजनीश कुमार, मिस्टर उत्तम, मिस्टर आदित्य, मिस जीनत, मिस रिजा, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। बहुत ढंग से और बहुत बातें जो मैंने आपसे भी सीखी यहाँ आने के बाद, मैं बहुत प्रसन्न हुआ। एक बात मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि कल कौन सी तारीख था? 4 जुलाई था। 4 जुलाई किस लिए प्रसिद्ध है? 4 जुलाई को क्या क्या हुआ था कभी इतिहास में, तो इसको हम लोग कभी कभी याद करना चाहिए। क्योंकि मैं इसलिए कर रहा हूँ, मैं ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा, मुझसे सिर्फ 15 मिनट इसमें होगा, 15-16 मिनट में अपनी बात खत्म कर दूँगा। लेकिन बहुत देर से हम लोग लॉ पर बोलते चले आ रहे हैं, और बोलते बोलते लग रहा था कि उबाऊ टाइप का लगने लग रहा था, इसलिए मैं दूसरा थोड़ा प्रसंग अभी लेता हूँ। 4 जुलाई 1776 क्या हुआ था? अगर आप लोगों को मालूम तो बताइए। अमेरिका को 13 जो कॉलोनी अमेरिका के थे, उन लोगों ने समता की घोषणा कर दिया। कब कर लिया? 4 जुलाई 1776 कर लिया। ठीक। अब मैंने अमेरिका का नाम क्यों लिया? इसलिए लिया कि अमेरिका में बच्चे जो है, लॉ की पढ़ाई कब से होती है? 5वीं क्लास से शुरू हो जाती है। हमारे यहाँ ठीक है, अब आजकल इंटरमीडिएट से 5 ईयर्स कोर्सेज शुरू हो रहा है, लेकिन वहाँ अमेरिका में 5वीं क्लास से ही लॉ की पढ़ाई। कोई इसमें से आप लोगों में से कोई कचहरी कभी गया होगा या सुना होगा, तो वहाँ का जुडिशल सिस्टम भी बड़ा अजीब है, और बहुत हमको तो वहाँ का बहुत अच्छा लगता है। जैसे वहाँ का सिस्टम है कि तो उसमें कोर्ट में जाइएगा, कुछ वकील डिफेंस वकील क्रॉस करते हैं, तो क्रॉस करेंगे तो 2 घंटा करेंगे, 4 घंटा करेंगे, कभी कभी 2 दिन 3 दिन करेंगे, तो चेहरा भी उनका बहुत भयानक लगता है, गवाह पर ही टूटने लगता है, क्या कहा जाए क्या नहीं कहा जाए, ऐसे बोलो और जोर जोर से बोलना, झपट कर बोलना। लेकिन अमेरिका में इस तरह का नहीं है। वहाँ का जो सिस्टम है अमेरिका का, वहाँ है कि अक्सर हाँ आप लिख करके जो पूछना आपको है वो गवाह से लिख करके आप दे दीजिए,
लिख करके दीजिए, या मतलब जब आप लिख करके आपको दे देगा, या नहीं कि भाव भंगिमा लगा कि अब लड़ाई कर देगा, लगे मारी बैठेगा इसको, उस तरह का। और खास करके महिलाओं से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें इतने एग्रेसिव ढंग से लोग पूछता है जिसका कोई हिसाब नहीं, बियॉन्ड मैंने का कार्य मतलब ही नहीं है, उस तरह की बातें वहां होने लगती हैं। तो अब वहां पर क्या है, मौखिक भी जीरा का है प्रावधान, लेकिन छोटे केसेज में जिसकी सजा मान लिया कि 5 साल 6 साल 7 साल है, वैसे कि उससे नीचे के केसेज में मात्र 10 मिनट जीरा वो करना है, बेसी नहीं करना है। और बड़े जो केसेज हैं जिसमें कैपिटल तक होता है पनिशमेंट, जैसे मृत्युदंड तक होता है, उसमें मात्र 30 मिनट खाली आपको करना है जीरा। 30 मिनट से बेसी आप जीरा नहीं कर सकते। लेकिन भारत में जो आप देख रहे हैं में चल रहा है, तो चल रहा है, कितना दिन चलेगा क्या होगा उससे मतलब नहीं है। तो ये सारी चीजें हैं। दूसरी बात 4 जुलाई, तो इसलिए मैंने कहा 4 जुलाई 1905 में हमारे यहाँ विवेकानंद जी थे, वे अमेरिका उनका निधन हो गया। 4 जुलाई कब हुआ? 4 जुलाई 1905 में उनका निधन हो गया। सब कोई जानता है कि विवेकानंद बहुत बड़े संत थे और वे हमेशा करते थे कि सभी धर्म बराबर होते हैं। और दूसरी बात 4 जुलाई 1945, इसको भी याद रखिए, इंपॉर्टेंट लाइन ये सब है। 4 जुलाई 1945 को क्या हुआ? 4 जुलाई 1945 को ये ब्रिटिश पार्लियामेंट में भारत स्वतंत्रता का बिल जो है उस दिन पास किया जा रहा था। भारतीय स्वतंत्रता बिल जो है आपको पास, उसी बिल से भारत और पाकिस्तान का डिवीजन भी जो है उसी बिल में था, डिवीजन हो भारत और पाकिस्तान का। बिल का क्या नाम था? भारतीय स्वतंत्रता ये बिल विधेयक। उसमें जब दस्तखत जब राजा या रानी बोलेगा तभी तो रूप लेगा, पार्लियामेंट में पास किया। मेरे लिए आदर्श 2 ही व्यक्ति है जिसमें हर आदमी को कोई रखना चाहिए इंस्पिरेशन के लिए। मेरे लिए आदर्श हैं, एक है विवेकानंद और दूसरे हैं हमारे भारत के पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम साहब। दोनों बहुत इंस्पिरेशन, दोनों बहुत इंस्पायर्ड है, बहुत से लोग देखना चाहिए, समझना चाहिए। और इन्होंने देश को बहुत कुछ दिया। ये बिल्कुल मिसाइल मैन के रूप में बहुत कुछ दिया हमारे पूर्व राष्ट्रपति ने। और ये तो 39 वर्ष की जीवन में ही विवेकानंद ने भारत को बहुत कुछ दे दिया। अभी नए कानून के बारे में जो चर्चाएं हो रही हैं, हमारे पास जो है अभी अमित शाह का बयान, जो गृह मंत्री हैं उनका बयान आया था कि नए कानून में सबसे पहली प्राथमिकता महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों को दी गई है। उनके प्रति अपराध पर एक न्याय अध्याय भारतीय न्याय अधिनियम में जोड़कर उसे और भी अधिक संवेदनशील बनाया गया है। उनका कथन है। अच्छा, भारतीय दंड संहिता में आप लोगों ने बहुत कुछ कहा है, फिर भी मैं संक्षिप्त में बोल दे रहा हूँ। 511 सेक्शन है, लेकिन वो भारतीय न्याय संहिता में वो 358 सेक्शन है, कुछ घटा दिया गया। इसलिए आपराधिक दंड प्रक्रिया संहिता में जो धाराएं हैं, जबकि नए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में 531 सेक्शन है, जिसमें जो धाराएं हैं आपराधिक दंड प्रक्रिया संहिता में कम थे और नए में 531 सेक्शन ज्यादा बढ़ा दिया गया। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में पहले 167 धाराएं थी, जबकि अब 170 हो गई है। अभी काफी प्रचार प्रसार नए कानून को किया जा रहा है। मुझे भी बिहार जुडिशियल एकेडमी में इस विषय की जानकारी देने के लिए सरकार की ओर से मुझे APP, मैं हूँ कोर्ट में भी, तो APP के रूप में ये कानून की जानकारी के लिए हमें बिहार जुडिशियल एकेडमी भेजा गया था। जजेज वगैरह इसकी पढ़ाई कराते हैं वहाँ पर, सारे वकीलों को भी, जो सरकारी वकील रहते हैं, जजों को भी, तो बहुत जबरदस्त उसे ट्रेनिंग दिया जा रहा है वहाँ पर। मैं भी उसमें शामिल हुआ। 14 से 16 तक मैंने इसका ट्रेनिंग लिया था और उसमें हमसे कहा गया था कि आपकी जवाबदेही बनती है कि नए कानून की जानकारी आप आम लोगों को अवश्य दें। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं कहाँ दूँ, और आपके जैसे मैं कोचिंग संस्थान में सोचा कि सबसे उपयुक्त जगह वही है।
मैं में जाकर इसके बाद अपराध के कुछ नए चैप्टर जोड़े गए, मसलन साइबर क्राइम नया जोड़ा गया है, चैन स्केचिंग जो महिलाएं और बच्चियां जा रही है चैन बंद करके उसका स्नैचिंग, यह भी पहले नहीं था, ये नया ही जोड़ा गया है। मॉब लिचिंग, कोई जा रहा है और भीड़ को उकसा करके हिंसा करा दिया जा रहा है, यह भी पहले नहीं था। मॉब लिचिंग नया अध्याय जोड़ा गया और उसमें सजा इसमें फांसी तक दी गई मॉब लिचिंग का। फिर कैटर ट्रेसपास जो जानवरों का है, जो उसका पहले सेक्शन 429 में होता था, लेकिन अब इसके लिए कैटर ट्रेसपास अलग ही बना दिया गया। ट्रांसजेंडर शब्द पहले महिला और पुरुष थे, अब पहली बार ट्रांसजेंडर शब्द जो है इसमें जोड़ दिया गया है। हीट एंड रन, यह भी पहली बार उसमें दिया गया, हीट एंड रन करके कि आप अगर आप जैसे भाग जाते हैं, पलना करते हैं, तो आपको जैसे ये सजा होगी 10 साल और 20 लाख रुपए देना पड़ेगा। फिर इकोनॉमिक क्राइम है, जिसको पहली बार जोड़ा गया। पनिशमेंट में अभी आपके डायरेक्टर साहब कर रहे थे कि पेटी ऑफेंसेज में कम्युनिटी सर्विसेज का जोड़ा गया है, ये भी इसमें पहली बार जोड़ा गया है कम्युनिटी सर्विसेज इसमें ये। तो इसमें एक बात जरूर है कि बियॉन्ड डिग्निटी कम्युनिटी सर्विसेज नहीं करना है, यह जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का कि ऐसा नहीं करेंगे जा करके आप लैट्रिन साफ कीजिए और फलना कीजिए, ये कीजिए, ये सब नहीं है। उसे भी डिग्निटी पूर्ण ढंग से कम्युनिटी सर्विसेज करना है। पिक पॉकेटिंग पहले नहीं था, पिक पॉकेटिंग जोड़ा गया है। व्हाइट कलर क्राइम नहीं था, जैसे बड़े बड़े लोग जो क्राइम करते हैं, तो माल्या थे और भी बहुत सारे लोग हैं, ये लोग पहली बार इसमें जोड़ा गया है। और माइनर शब्द की जगह पहले माइनर चाइल्ड शब्द लिखा गया है। 18 वर्ष तक के बच्चे हैं वो चाइल्ड लिखा जाएगा। अनसाउंड माइंड, इडियट, पागल के लिए जो है क्या शब्द दिया गया है इसमें, मेंटल हेल्थ कहा गया है। और राजद्रोह को हटाकर देशद्रोह जोड़ दिया गया है। ये सब इसके करीब कुछ जैसे ये। हाँ, एक चीज और है, ऑर्गेनाइज्ड सिंडिकेट क्राइम भी जोड़ा गया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता भी मैंने लिंक बटवाया भी, आप लोग ये सब बातें होंगे भी, आप देख लीजिएगा। फिर भी संक्षिप्त में इसको बात कर रहा हूँ। FIR के माध्यम से होता है, ये FIR 0 है, जिसकी बहुत सारी चर्चाएं इसमें हो गई हैं। और फिर ये इस पे चर्चा करने जो हमको नहीं है, बहुत चर्चा हो गया है। लेकिन मेरा एक कहना है कि बहुत सारे केस पुलिस स्वयं बना देती है, पुलिस अपनी ओर से भी बना देती है, जो इस पर रोक लगाना चाहिए। पुलिस और कोर्ट के लिए समय सीमा तय कर दिया गया है, इसमें कोर्ट को भी समय सीमा तय है और पुलिस को समय सीमा तय है। गृह मंत्री ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट तक मामले का निष्पादन, भाई तो ये मत आप लोग ठीक रहो, सुप्रीम कोर्ट तक मामले का निष्पादन कितने दिन हो जाएगा, 3 वर्ष में हो जाएगा। यहाँ से चल करके जो पहले 25-30 वर्ष में होता था, अब 3 वर्ष में उनका कहना है कि निष्पादन हम करा देंगे। इसका पूरी प्रक्रिया इसमें ऑनलाइन होगी इस एक्ट के अनुसार। FIR को भी, विक्टिम को भी ऑनलाइन मिलेगा। और कॉग्निजेंस ऑफिस में आम नागरिकों को देखिए, ये पहले प्रोविजन था, आप लोग सुनकर आश्चर्य होगा कि कॉग्निजेंस केस, जिस केस में वारंट, ये पुलिस जो है बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकते उसको कॉग्निजेंस कहते हैं, सजा हो सकती है 3 साल। तो वैसे केसेज में आम आदमी भी आप ही गिरफ्तार कर सकते हैं। आपको लग रहा है कि यह आदमी कॉग्निजेंस ऑफेंस कर रहा है, आप उसको तुरंत गिरफ्तार कर सकते हैं, पब्लिक भी गिरफ्तार कर ले सकती है, यह उसका पावर है, पहले भी था। लेकिन अब इसमें टाइम लिमिट किया गया है, इसमें कि सिर्फ 6 घंटे आपको अपने पास रखना है। पहले 2 दिन 3 दिन रख लेता था, मारपीट करके उसे ठीक कर करके, बल्कि अधमुआ कर करके, कभी कभी मारी कर करके, जो लगा के बरी जाएगा तब थाना में दे देना। लेकिन अब सिर्फ 6 घंटा उसको अपने साथ रखना है। और उसके बाद जो है पहले था कि एज सून एज पॉसिबल आप बहुत गलत दर्ज लगा देते, तो टाइम लिमिट कर देगा 6 घंटे में उनको अपना जैसे कर देगा। और नजरबंदी कानून इसे खत्म कर दिया गया। आपने हाल में सुना था कि उमर अब्दुल्ला को नजरबंदी किया गया और वहाँ का मुफ्ती मौज जो महुआ थी उनको नजरबंद कर दिया गया था। लेकिन इस कानून में नजरबंदी शब्द से हाउस अरेस्ट शब्द इसको समाप्त कर दिया गया है, नया कानून इसको।
वर्तमान में आपको पता है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि वर्तमान में 4.5 लाख से अधिक कैदी जेल में बंद हैं, ट्रायल प्रिजनर हैं, इनका अभी सजा नहीं हुआ है। कितने बंद हैं? 4.5 लाख। जबकि कन्विक्शन रेट कितना है? 6%। कन्विक्शन रेट है 6% और 4.5 लाख जैसे जेल में ट्रायल में प्रिजनर के रूप में बंद है। अब गृह मंत्री का बयान आया है कि पहले 90% से अधिक रिहा हो जाते थे, लेकिन अब 90% में सजा होगी और 10% ही छूट पाएगी। अच्छी बात है, अब कहना ऐसा ही हो, लेकिन देखिए क्या होता है। अब टीले वाले ऑप्शन जो थे सीआरपीसी में पहले वाले में, उसे समाप्त कर दिया गया है। अगर मुदारा फरार चल रहा है तो उसे अबसेंट कर ट्रायल को आगे बढ़ा दिया जाता है। 90 दिन के भीतर विक्टिम को केस का प्रगति लिखित में बतलाना होगा। पुलिस क्या करेगी कि 90 दिन के अंदर 90 दिन बाद की पुलिस क्या केस में प्रगति है उसको लिखित में बताना होगा और उनको उस पर दस्तखत भी करवाना होगा विक्टिम से कि हाँ आपने किया। एक बड़ा सुंदर एक मैं बता रहा हूँ आपको, एक 41 है जिसकी चर्चा आपके डॉक्टर साहब ने भी किया। ये सीआरपीसी में बड़ा सुंदर जजमेंट का है, अरविंद कुमार बिहार सरकार का। यह तो नार्को 98 के दुरुपयोग के बारे में इन्होंने कहा था। 41A में आया है कि इसका दुरुपयोग होता था। और आपको आश्चर्य होगा कि 2012 में एक डाटा आया था और उसमें था कि जिसमें ये 2 लाख जेल गए थे मैट्रिमोनियल केस में, 498 कितने जेल गए थे? 2 लाख। महिलाएं कितना जेल गई थी उसमें? 50,000 मैट्रिमोनियल केस में। ये एक्चुअली ये जो केस है ये मैट्रिमोनियल केस, ये ऑफेंडर नहीं है, ये रियल ऑफेंडर नहीं है, रियल अपराधी नहीं है। ये आपस में हस्बैंड वाइफ में झंझट हुआ जिसके चलते जैसे पनिशमेंट सास ससुर और सबको दे दिया जाता था। उसी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया, जिसको आप लोग लिख लीजिए। उसका है AIR 2014 सुप्रीम कोर्ट पेज 2756। इसमें यह होगा कि सिर्फ हस्बैंड को छोड़ करके जितने आप उदाहरण बना देते हैं, फादर को, मदर को, भाई को, भतीजा को, बहन को, बहनोई को, सबको बना के पूरे परिवार को करते तो वो सब नहीं करना है। हस्बैंड को सिर्फ मत कर दीजिए, लेकिन और सबको जैसे आपको अब हस्बैंड को भी आ गया है कि कोर्सन वाला जो है स्टेप जैसे नहीं लेना है, बेड ठीक अपना मिलता रहेगा। इस तरह की बातें हो रही है। दूसरी बात मैं जो है कि राजीव गांधी हत्याकांड केस में आप लोगों ने सुना होगा कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, तो उसमें मर्सी अपील जितना पेंडिंग रहा तो बहुत दिन 2 दशक तक मर्सी अपील पेंडिंग रह गया। सजा का 2 दशक काट रही है और 2 दशक से बेसी हो गया। अब मर्सी उनका जो अपील का पेंडिंग रहा है, अस्वीकार होने पर फिर मर्सी अपील किया जाता था, लेकिन अब इसमें हटा दिया गया है। मर्सी अपील राष्ट्रपति के पास सिर्फ 2 महीना रहेगा, उन्हें 60 दिन रहेगा और दोबारा अगर रिजेक्ट हो गया तो दोबारा फिर जैसे हुआ राष्ट्रपति के पास मर्सी अपील के लिए नहीं जाएगा। मैंने 2 महीने के अंदर इसको डिस्पोज कर देना है। पहले था 20 वर्ष तक अपील के लिए गया हुआ है, फलना गया हो, सब लंबा सब खत्म कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट द्वारा विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम 2018 में बनवाया गया था, गाइडलाइन दिया गया था इसका। उनका कहना था कि विटनेसेस आर द आइज ऑफ ईयर ऑफ जस्टिस। विटनेसेस जो है जस्टिस के कान होते हैं। यह भी कहना था कि विटनेसेस आर गेस्ट ऑफ द कोर्ट, बताई गई है। इसमें भारतीय साक्ष्य अधिनियम में बड़ा बदलाव आया है। इसमें एक नया शेड्यूल जोड़ा गया है। पुलिस को घटना से संबंधित ऑडियो वीडियो वो रिकॉर्डिंग रखना मैंडेटरी है। अब इसमें एक्सपर्ट की गवाही भी वीडियो कॉल से होगी, यानी कि पहले की तरह आ रहा गवाह नहीं आया, पुलिस नहीं आया, डॉक्टर तो नहीं, जहां है वहीं से इनका गवाही हो जाएगी, यहाँ आने की जरूरत नहीं है। साइंटिफिक प्रोसीजर बना गया है, एजुकेशन टिल ट्रायल। ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मोड में होगा और इसे न्यायालय में प्रस्तुत करना होगा, यानी कि रख लेना अपने पास नहीं करके न्यायालय में इसको प्रस्तुत करें। गवाहों का स्टेटमेंट भी ऑडियो वीडियो से होगा। पहले से लिख लिया, पढ़ लिया, फिर नहीं, सब लिख करके खुलाना होगा। पहले अपराध मैन टू मैन होते थे, लेकिन अब अपराध मशीन टू मशीन हो रहा है। देख रहे हैं अब अपराध क्या हो रहा है? मशीन टू मशीन हो रहा है। और
मैं थोड़ा सा आलोचनात्मक ढंग से लेकिन बहुत गार्डेड वे में मैं अपनी बातों को आप लोगों के सामने, जो प्रेस भी मीडिया भी बैठे हुए हैं, आप लोग ये सब बहुत तेज हैं। आज के विद्यार्थी सब बहुत तेज होते हैं। हम लोग जिसमें पढ़ते थे उसमें बहुत कम जानते थे, लेकिन आप लोग बहुत अच्छा मैंने विस्तार है कुछ जानने होने का। मैं कुछ आप लोगों के लिए भी कुछ प्रश्न को मैं रख दे रहा हूँ कि भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू होना सुखद एवं स्वागत योग्य है। इसके साथ ही भारतीय अपराध न्याय प्रणाली में व्यापक बदलाव दौर शुरू हो गया है। तीसरा जो पॉइंट इसमें है, औपनिवेशिक युग, औपनिवेशिक युग के निर्माण में आज नागरिक विरोधी कानूनों को समाप्त करने की मांग लंबे समय से हो रही थी और अंततः अब पुलिस को अनुशासित के साथ साथ कारगर बनाने की ओर देश ने कदम बढ़ा दिया है। क्योंकि कोई भी कुछ होता है तो क्राइम को रोकने का जो पावर होता है किसको होता है? पुलिस को होता है। अब हमको देखना है कि पुलिस अपना कर्तव्य कैसे निभा रही है, कितना निभा रही है। पुलिस को पहला यह ध्यान रखना है कि कोई भी कानून अगर लागू हो तो सभी पर समान रूप से लागू हो, या नहीं कि जिसको मान लिया उसे लागू कर दिया और छोड़ दिया। तो ये तो अभी तक तो प्रैक्टिस यही चल रहा है, लेकिन अपेक्षा की जाती है लोगों से कि समान रूप से कानून लागू करें। ये जो नया भी कानून बना है इसको पुराने की तरह नहीं कि उसको वैसे कर दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। पुलिस प्रशासन से सफलता इसी में है कि तमाम लोगों को महसूस भी होना चाहिए लोगों को कि हाँ यह सही जैसा न्याय है, सही कानून है। एक पहलू यह भी है कि पुलिस प्रशासन को कुशल और सक्षम बनाने के लिए संसाधनों की कमी आड़े नहीं आए। जिस स्तर की सेवा जो लोग पुलिस से कर रहा है उसके लिए सरकारों को पुलिस पर व्यय बढ़ाना होगा। सक्षम और सहयोगी पुलिस हमारे तेज विकास में कारगर होगी। उल्लेखनीय है जो देखा गया था कि पिछले कानूनों में यह बड़ी कमी थी, उनका इस्तेमाल गरीबों के खिलाफ, इसको सुनिए बढ़िया से। उल्लेखनीय है कि पिछले कानूनों में यह भी बहुत बड़ी कमी थी, उनका इस्तेमाल गरीबों के खिलाफ जितनी आसानी से होता था उससे कहीं ज्यादा कठिनाई से अमीरों के खिलाफ मामले दर्ज होते थे। अगर कोई अमीर के खिलाफ मामला दर्ज होना है तो होता ही नहीं। बिल्कुल ये सच्चाई है जो मैंने बोर्ड लिखा है। आरोप सिद्ध होने या सजा के मामले में भी गरीबों को ज्यादा भुगतना पड़ता था। हम बार बार कह रहे हैं कि 3 कानूनों में ब्रिटिश काल के 3 कानूनों को जगह ले ली है, तो वास्तव में लोगों को एहसास कराना होगा कि ब्रिटिश हिसाब से बने कानून अब देश में नहीं चल रहा है। पहले क्या था वो था, अब ये आ गया तो बदलाव होना चाहिए ना। क्या भाई तो उपनिवेशिक काल का कानून था, क्या स्वतंत्र भारत का कानून है? स्वतंत्र भारत का ही कानून नहीं है, ये अमृत काल का कानून है। इससे तो बहुत बदलाव होना चाहिए, अगर नहीं बदलाव हुआ तो सब फालतू वैसे ही हो रहा क्या सब। तो एहसास कराना होगा पुलिस को कि ब्रिटिश हिसाब से बने कानून अब देश में नहीं चल रहा है। नए कानून में ताकत है कि इनसे अपने यहाँ संपूर्ण न्याय प्रणाली में आम नागरिकों रूप आधुनिक बदलाव हो सकता है। 0 FIR, पुलिस शिकायतों का ऑनलाइन पंजीकरण, SMS जैसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सम्मन और सभी जघन्य अपराधों के लिए अपराध स्थलों के निवारण वीडियोग्राफी जैसे प्रावधान ज्यादा कारगरता से लागू हो जाएंगे। देश के ज्यादातर राज्यों में पुलिस जिस तरह से प्रशिक्षित हो रही है उससे जुड़ी खबरों के सामने आना भी सुखद है। यह स्पष्ट है कि कानूनों से देश में पुलिस सुधार को भी ताकत मिलेगा। पुलिस कायदे के अनुसार काम करने को विवश है, बात होगी उसके विवश होना पड़ेगा, बाध्य होना पड़ेगा। समग्र न्याय प्रणाली में इस स्याह पहलू को बहुत गंभीरता से देखने की जरूरत है। स्याह पहलू मतलब काले पहलू। आपने कुछ दिनों पहले देखा होगा कि श्रेया हत्याकांड का मामला आया, लोगों ने कह दिया कि नहीं साहब ये तो जैसे ही है, क्या नाम है, आत्महत्या का मामला। लेकिन जब यही पुलिस 4 दिन पहले की बात है, अभी आप डॉक्टर साहब कह रहे थे कि कुछ दिन पहले जैसे इतना में जितना नया, लेकिन श्रेया हत्याकांड के बिहार की घटना क्या हुआ था, लोगों ने कह दिया कि आत्महत्या है, यही पुलिस कर रही थी। डीएसपी स्तर के लोग बयान दे रहे थे, लेडी डॉक्टर बयान दे रही थी कि सब आत्महत्या कर लिया, डूब गई, अपने डूब गई। लेकिन जब बहुत लोगों का आक्रोश का शिकार होना पड़ा और जब जनता के जनप्रतिनिधि आए तब जाकर के रूप बदला और उसका हो गया कि नहीं साहब हत्या था। इसलिए की दुष्कृति भी थी, रेप भी हुआ, हत्या सब हो गया। पहले था न रेप था न हत्या था, क्या था तो ऐसे ही डूबने समय
तो ये पुलिस को जो है ये जो उसका जो रूप है रौद्र रूप, इसको उनको बदलना होगा। और हमको यह भी देखना है कि कहीं अच्छे कानून भ्रष्ट आचरण से दूषित न हो जाए, और कानून बन जाना भी पर्याप्त नहीं है, यह देखना भी जरूरी है कि कानून को लागू करने वाले और कराने वाले भी कितना ईमानदार है, यह भी जरूरी है। राज्य सरकारों को प्रशिक्षण से सुधार करना होगा कि पुलिस सैद्धांतिक रूप से ही नहीं बल्कि व्यवहारिक रूप से कुशल और शालीन हो। पुलिस बल मात्र शताधीशों का नहीं होना चाहिए। अभी क्या है, पुलिस बल मात्र शताधीशों का है, क्योंकि उसे बना हुआ है वही ढंग है अंग्रेजों के समय का ही। ये पुलिस जो शताधीन है वो शतासीन है, उन्हीं के बारे में सोचना है। तो पुलिस बल मात्र शताधीशों का नहीं बल्कि समग्र समाज का बल है। किसका बल है? पूरे समाज का बल है ये। पुलिस एक प्राथमिक रूप से संविधान नियम कानूनों को बुनियाद मजबूत करती है। आज पुलिस को निरंतर प्रशिक्षित करने की जरूरत है और उसका प्रशिक्षण मात्र आगे नहीं होना चाहिए। प्रशिक्षण अगर सफलता को सफल हुआ, यकीन मानिए तीनों नए कानूनों में देश के न्याय को ले जाने की क्षमता है। अंत में मैं आप लोगों से एक चीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा, और मैं देख रहा हूं आप लोगों को जितने पार्टिसिपेंट यहाँ पर हैं, आप सभी नौनिहाल हैं, देश के नौनिहाल हैं। मेरा आप लोगों से एक निवेदन होगा कि दृढ़ इच्छा शक्ति, त्याग, समर्पण एवं किरत के साथ अपने एक बेहतर निर्णय को पंख ले आओ। क्या रखें? त्याग, समर्पण मतलब कमिटमेंट, धीरज है, और अपने एक निर्णय बेहतर निर्णय को पंख दें। भीड़ से हटकर अपनों को निरंतर अभ्यास में झोंके, कभी मुश्किलों से टूटे नहीं, इस बात को बराबर ध्यान रखना है। और एक साहिबा का है, उसमें उद्धृत था ये पंक्ति जो मैं आप लोग से रख रहा हूँ, उस पार है उजियाला ही उजियाला। मैं सभी जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके लिए कर रहा हूँ। उस पार है उजियाला ही उजियाला, उस पार है उम्मीदें ही उम्मीदें, बस अंधेरा तो है देहरी तक, इस देहरी को पार तो कर, यह बहुत जरूरी चीज है। और बहुत बहुत धन्यवाद। एक डायरी दी जा रही है जिसमें सारे कानूनी से बहुत सारे कानूनी से लिखे हुए हैं, आप लोगों से सुविधा होगी। और जो कर दिया जाए, क्योंकि भाई बच्चों को तो या टीचर को या तो किताब से संबंध है या कलम से संबंध है, और तो कुछ नहीं। ठीक है, जो Thank you, sir, for giving your precious time and to encourage all of us. So I would like to call one by one, and you have to receive the gift. Call Miss Soumya. Please come here and receive your gift. And never see gift is so precious that it can't be valued in the terms of money. So gift is gift. Please come here and receive your gift. There is mightier than sword. It is said that there is mightier than sword. Okay. Next participant, Mr. Lucky. Please come here. You are lucky. आगे सुनिएगा। Thank you. Next participant, अवश्य से देवी। बेटा आप से निकाल दीजिए अवश्य के पास से। अवश्य से। Next, Mr. रजनीश कुमार। Mr. receive your gift. Thank you, sir. Mr. Uttam. Zira. Zira. Last gift, I think, sir. Last gift to go to our guest and guest reporter.